और आजकल एक डिबेट है जो बहुत चल रही है कि अपने बच्चों का फेस सोशल मीडिया पे शेयर करें या नहीं करें। ये सही में इतना स्कैरी है जितना हम लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, देखते हैं, या फिर हम ज्यादा डर रहे हैं? Yes, it is scary. During the food, you can have a conversation, but no screen time. Because it will impact the way you're eating, the way you're chewing, the way you're processing. Your relationship with food will completely be distorted. कोई राइट एज होती है डिवाइस देने की, या फिर हमें बच्चों का मेंटल मेकअप या आई डोंट नो क्या देखना चाहिए कि हाँ, आर दे रेडी, आर दे नॉट? तो हाउ डू वी डू दिस डिवाइस थिंग? इन्हें हमें बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करना. You have to start treating them as individuals and age appropriate right information. Hello, Sassy Nari. Welcome to Little Fixes podcast, where we are not trying to fix everything, just the stuff that's getting on our nerves at the moment. It's real talk about mental health, messy emotions, and figuring out how to show up. One tiny, doable thing at a time. Because life's a lot, and so are we. I'm a millennial parent raising a Gen Alpha. We might have adapted to the internet, but not all of us fully understand how fast the digital world is changing and what dangers it might carry, especially for the kids. Yes, the internet has many, many benefits, but has its dark side too. I have stopped sharing my daughter's pictures online and wonder about the right age to give her a phone and about educating her regarding internet's threats. Even connecting and communicating with this generation requires a very different approach as they are born in a completely digitized world and have very sharp minds. If you also wonder about your kids' safety in the digital world, if you want to know what to do if yours or your kids' pictures are used wrongly, then this episode is for you. We also talk about screen time management, cyberbullying prevention, social media for kids, and internet safety for kids because protecting kids online is the need of the hour. I'm speaking with cyber psychologist Nirali Bhatia. Nirali is an accomplished consulting psychologist and psychotherapist with over 2 decades of experience in web technology. Her area of expertise lies in cyber psychology, where she studies the impact of technology on human behavior and mind. She heads V for Web Technologies Private Limited, a tech company that specializes in developing secure applications with the best user experience. Nirali Bhatia is the founder of CyberBAP, an anti-cyberbullying organization providing guidance, counseling, and reporting assistance to victims of cyberbullying. Her extensive experience and knowledge have led her to be a guest speaker and panelist for organizations such as UN Women and UNICEF. We had a very open talk, but please understand that the purpose is not to judge you, but to educate you. So please listen with an open mind. All this information is coming to you for free, so I urge you to support me by sharing this episode with all the parents you know. Subscribe to Little Fixes on YouTube and follow it on your podcast app. And now to our guest. Hi Nirali, welcome to Little Fixes. Yeah. Hi, thank you so much for having me over here. So it's my honor to have you here because you are doing tremendous work. I have seen your videos, your website, everything, और इतनी सारी चीजें हैं which you're doing और very much needed for today's generation. I think for every generation. एंड बिकॉज आज हम लोग अपनी जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं उनके बच्चों के बारे में बात करने वाले, मोस्टली दे आर जेन अल्फा बॉर्न बिटवीन Correct. 2010 एंड 2025. तो उनकी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप हमें यही बताओ निराली कि आपके हिसाब से उनकी लाइफ कैसी है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट urban middle class, upper middle class kids, so how do you see their lives considering they are born in a digital age? So, like you rightly said, कि Gen Alpha से हम deal कर रहे हैं. Now, these are the kids who are born in digital era. So, for them, digital world is a very, very integral part of their lives. मतलब उनके लिए वो अलग नहीं है कि ऑनलाइन वर्ल्ड अलग है, ऑफलाइन वर्ल्ड अलग है, वैसा नहीं है. Whereas ज़्यादातर उनके पेरेंट्स मिलेनियल्स हैं. अब मिलेनियल्स ने ऑफलाइन वर्ल्ड भी देखा है एंड दे आर अडेप्टिंग टू द डिजिटल वर्ल्ड. सो पेरेंट्स जब वो बोलते हैं ना कि अरे हमारे जमाने में अल्फा चिप किड्स कैन नॉट रिलेट एट ऑल because Yeah. they have never seen that, you know. Like I'm a mother of a Gen Z. So Hmm. मेरे बेटे ने at least in the beginning, you know, first 5 years of his life,
he has still seen a generation, or rather he has seen life without internet or internet enabled devices. Hmm. तो थोड़ा सा वो रिलेट कर पाते हैं, लेकिन अल्फा बिल्कुल ही नहीं रिलेट कर पाते also, Hmm. because they've been conceived also at that time where internet usage was high. So Hmm. in terms of the way they think, in terms of the way their overall experiences will be, are going to be very different than what the previous all generations के बच्चों का है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें फर्क है. So in terms of multitasking, Hmm. alpha kids will really be natural multitaskers, Yeah. because when you are born in digital era, in digital world, there is no one thing at a time. We all are doing multiple things, and it's very common, and it seems a very new normal as such. So in terms of multitasking, so you'll find these kids के पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में शायद कोई नेटफ्लिक्स की मूवी भी चल रही होती है, यहाँ पे कोई गेम का वीडियो भी चल रहा होता है, एंड सिर्फ Hmm. साथ में हो रहा है. सो Hmm. Hmm. पेरेंट हमें वो लगता है कि ये क्या हो रहा है, लाइक पढ़ाई करनी तो सिर्फ पढ़ाई करो, but for Hmm. them it is also very normal. So that is one major change. Second Hmm. change is in terms of patience. Yeah. They're born in an era which is, breeding on instant gratification. तो Oh, yes. पेशेंस ये वर्च्यू उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, and that is where there will be a lot of push pull with the parents in terms of, तो ये हमें सिखाने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, but they are going to be naturally a little low on patience, or I would rather say a little more impatient, or going for Hmm. instant gratifications, because that is where the environment they come. Then the third very typical trait that you will see is in terms of farsight. See, they are born in an era जब resources already challenged हैं. Hmm. The dialogue around is global warming, and world is going to come to an end, and there is so much less and all. So they are living in a world which is very unstable and insecure. So this becomes their own flavor of their own emotions also. So that is why they don't have farsight. You will find them working on living for now more. So Hmm. these are the three very different forms of behavioral traits that we've noticed. Yes, in terms of their learning models, वहाँ पर भी फर्क है. Hmm. कि हम डिजिटल एरा में बॉर्न हैं, तो द वे आवर ब्रेन इज परसीविंग मेमोरीज और रिमेम्बरिंग थिंग्स इज नाउ डिफरेंट देन व्हाट me, or rather like my generation. I'm Gen X फिर भी. Then millennials and alpha have also perceived is going to be very different. Hmm. या आई हैव सीन दिस विद माई डॉटर शी 7. तो Right. जैसे मेरे साथ भी क्या होता है ना, अगर मैं एक चीज़ कर रही हूँ तो मुझे एक चीज़ और करनी है. Correct. अगर लैपटॉप पे आई एम डूइंग माई सोशल मीडिया वर्क तो मैं साथ में म्यूजिक चला लूंगी. अगर मैं नेटफ्लिक्स देख रही हूँ तो साथ में फ़ोन भी ब्राउज कर रही हूँ. किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो पॉडकास्ट सुन रही हूँ. तो मुझे Correct. लगता है कि कुछ हद तक जो मेरे ट्रेट्स हैं वो आ गए उसके अंदर. इवन व्हेन शी इज़ वर्किंग ना, तो वो भी अलेक्सा लगा लेगी कि True. चलो म्यूजिक भी सुनते रहते हैं. और अगर वो खाना खा रही है तो उसको टीवी देखना ज़रूरी है. आई मीन लंच में नहीं देखेगी तो डिनर पे एक बार दिखा तो मम्मा खाना खाना इज़ वेरी बोरिंग. True. एंड नथिंग हेल्प्स. मतलब वो खाना मैंने उसको कभी बचपन में टीवी नहीं दिखाया खाना खाते वक़्त. बट अब एज़ शी हैज़ ग्रोन अप शी इज़ लाइक कि खाना खाना इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग, तो उसके साथ टीवी देखना चाहिए. तो मैं उसको नहीं देखने देती हूँ, बट समटाइम्स शी पुशेज़ मी कि मम्मी आज चलो, आज वीकेंड, आज देख लेते हैं. तो आई हैव सीन दिस चेंज. और मैंने ये भी देखा, जैसे आपने इम्पेशंस बोला, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पेशंस. देयर इज़ दैट एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग कि मैंने बोला है तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई एम श्योर कि हर एक चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं. तो जैसे ये लोग डिजिटल एज में ग्रो अप हो रहे हैं, तो इसके आपके हिसाब से लुकिंग एट देयर फ्यूचर क्या प्रोज़ एंड क्या कॉन्स हो सकते हैं? राइट. जैसे आपने कहा कि आप मल्टीपल चीज़ें साथ में करते हो, सो आई ऑल्सो मेंशन दैट अर्लियर, से दीज किड्स रिक्वायर दैट काइंड ऑफ मल्टीपल स्टिमुलाई. हुँ, they really have amazingly sharp brains. अगर आप देखोगे आज की generation, I mean the newer generation kids like Gen Zs and Alphas,
They're really brilliant compared to what we were as kids. Yeah. They're born with sharper memories, amazing processing skills. So इन्हीं stimuli भी उतना ही important है. अगर इन बच्चों को आप enough stimulate नहीं करोगे, then they will resort to the internet world and find an essay, क्योंकि वहाँ पे multiple stimuli मिल ही जाता है. That it is Mhm. constantly on and they have multiple varieties of stuff. तो वो वहाँ stimuli ढूंढते हैं. Now, in terms of just before I answer your question, what kind of future are we looking for them? In terms of food and this, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो address करना बहुत ज़रूरी है. Mhm. Yes, eating food, या जैसे आपने थ्री इडियट्स में देखा होगा, वो प्रिंसिपल तभी भी बोलते थे कि यार शेविंग इज द मोस्ट मंडेन थिंग, तो उसके साथ में हाउ डू आई Yeah. यूटिलाइज माय टाइम एंड ऑल. सो द अल्फा किड्स really will find these all tasks boring, because like I said, they are living in a world which is very insecure world, which is on an edge, कि हमें नहीं पता है कि किस साइड पे हमारा वर्ल्ड फ्लिप हो जाएगा. So that is why they are always going to be in rush. They want things faster. They want things a little more, on an instant basis, and not wasting their time in mundane things. But when it comes to food and media, that is one thing where you must negotiate with your children that come what may, food के साथ please कोई screen time नहीं होना चाहिए. Because what happens is you do not realize what you are eating, how much you are eating. Especially when they are young, their whole focus is like हाँ मैं जितना लंबा तक बैठ के खा सकती हूँ उतना लंबा मेरा screen time जाएगा. So they'll overeat, they will eat slowly, basically all unhealthy ways of eating. Yeah. So put your foot down as a parent, because see these kids won't have that far side. We have that. Yes, body has not completely acclimatized itself to the digital world. Our Mhm. body is still, from the previous world, which was not 100% digital. Mm. So, in order to work on our body, preserve it, take care of it, we have to draw certain boundaries and certain lines where we have to put it. So, one is when it comes to food habits. During the food, you can have a conversation, but no screen time, because it will impact the way you're eating, the way you're chewing, the way you're processing. Your relationship with food will completely be distorted. You don't know what you're eating for, so you will always have an emotional connection way imbalanced with the food. And then we that is where we are having cases today where most of the kids are either obese, or they are the ones who are super conscious, they are under eating. We're not having a balanced eating approach. A lot of kids throw tantrums, especially when they are young. If they don't get screen time, they will not eat or something. So हाँ, I have seen we such are kids. we are moving towards that type, अगर हमने इस चीज पे रोक नहीं लगाई. So I just Mhm. wanted to address that because it is very crucial. Maximum children जो हमारे पास behavioral issues को लेके आते हैं is because of these smaller habits where we have not put. I'm not saying parents are doing this on purpose. We all also need that moment of peace कि भी शांति से खा ले, इसलिए हम स्क्रीन थमा देते हैं. But it's not the right thing. The best metaphor I will tell you that you can use for a screen to understand how dangerous it can be is fire. तुम ये Mhm. समझ लो, जब तुम स्क्रीन टाइम बच्चे को अनमॉनिटर देते हो, तुम जैसे उसे लाइटर दे रहे हो या मैच बॉक्स दे रहे हो कि जाके. It is as dangerous as that when it is unmonitored and when it is for a longer period of time. आप कैंडल की फ्लेम में यूं उंगली जब करके डालो कुछ नहीं होगा, लेकिन उंगली डाले रखोगे तो उंगली जल जाएगी, राइट? तो यही Mm. स्क्रीन के साथ हो रहा है. सो Mhm. जब भी आपको ऐसे लगे ना कि नहीं, क्योंकि स्क्रीन विजुअली डेंजरस नहीं लगता है, तो हाँ. इसीलिए हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम भी उसे चलने देते हैं. लेकिन एक्चुअली नाउ इफ यू स्टार्ट रिलेटिंग इट कि नहीं यार द स्क्रीन इज लाइक दैट फायर, Mm. आप फिर अपने हिसाब से उस पे रोक लाना शुरू करोगे. So yes, I just took that time to answer that one. Now coming to your question, that what kind of future we are looking at for these kids. So while they are born in an era which is very fast evolving,
The speed at which today our digital world is changing is very rampant. मतलब आज कुछ आपने सीखा, कल कुछ नया आ गया, कुछ changes आ गए, ये वो. तो for them also, finding that stability in one job is always going to be very difficult. So, as parents, we also have to be okay that your kids will keep on experimenting, keep on exploring, because they are born in an environment which is unstable. तो ये भी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए बहुत इन्हें स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि है ही नहीं एनवायरनमेंट में. तो यू शुड ऑल्सो बी ओके कि लेट देम डू दैट, लेट देम सपोर्ट, लेट देम एक्सप्लोर एंड लेट देम एक्सपेरिमेंट. एंड नाउ a lot of things are changing. Initially the societal norms were such कि yes, एक certain level की पढ़ाई के बाद अब आप settle हो जाओ. एंड settle होना लाइफ में मतलब होता था शादी कर लो, एक जन के साथ settle हो जाओ, वहां पे अपना परिवार शुरू करो. लेकिन अगर आप अभी जेन अल्फा की बात करोगे तो इनका वर्ल्ड जो है वो अलग हो गया है. इट इज नॉट अबाउट सेटलिंग, क्योंकि सेटल होने के लिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में भी वो ठहराव चाहिए होता है, जो आज हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है. तो इनके भी सेटलमेंट के नॉर्म्स अलग हैं, एंड वी हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट. वरना कलेश रोज का रहेगा कि हम बोलेंगे यार तुम तो कभी लाइफ में श्योर ही नहीं हो, तुम्हें तो हर रोज नया कुछ चाहिए. बट दैट इज हाउ दे आर वायर्ड, that is how they have been, they've been seen in the environment as such. So it is all right, as a society we also have to move forward, adapt to these newer norms. And एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि यस, अगर कुछ अलग सिस्टम हो रहा है तो लेट इट वर्क आउट फर्स्ट and then have a reaction. So we're going to look at many things being challenged, institution of marriage being challenged, the way relationships are being challenged, and वो हम देख ही रहे हैं Yeah. already. It's not that अल्फा Gen Z से ही शुरू हो चुका है वो, कि yes, the definition of relationships has changed, the way we look at terms of settling down has also changed. Mhm, mhm. Yeah. यस। अब लेकिन फिर हम जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें फोर्स कर देते थे कि तो नहीं, तुम्हें ये ऐसे ही करना है और इसी तरीके से रहना बिकॉज मैंने कहा है। और हमने सुन ली उनकी बात। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं बट अभी नहीं सुनते, तो आई एम श्योर कि वो बड़े हो जाएंगे तो और नहीं सुनेंगे, और जैसे उनको रहना है वैसे रहेंगे। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी देमसेल्व्स एज मच एज वी कैन, बट कई बार हमारा दिल हमें रोक लेता है कि नहीं, ये हम नहीं होने दे सकते, ये नहीं कर Correct. सकते। हाउ डू वी प्रिपेयर आवर सेल्व्स कि बच्चे बच्चे चेंज हो रहे हैं, जगह चेंज हो रही है। Oh, this is $1 million question. एंड इसका आंसर बहुत सिंपल है. सी अभी तक है ना, हम बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, जैसे हमारे माँ बाप हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते थे कि नहीं तुम्हें नहीं समझ आएगा, जैसे मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो न्यूअर जनरेशन है, दे रियली वेरी शार्प. तो इन्हें समझ आता है, इन्हें हमें बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करना. यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज इंडिविजुअल्स एंड एज अप्रोप्रिएट राइट इंफॉर्मेशन दो. इन्हें आप बेबी टॉक मत दो. अगर आप इनसे रीजन करोगे, इन्हें लॉजिकली समझाओगे, यू विल हैव मच मोर एक्सेप्टेंस विद देम. लाइक यू सेड कि यस, कुछ चीजें बच्चे हैं एक्सपेरिमेंट करने चाहते हैं, वो रिस्की हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, तो इन्हें यहाँ हमें रोकना ही है. हमारे पेरेंट्स थप्पड़ लगा के रोक देते थे या एक आवाज करते थे, हम रुक जाते थे. आज वो नहीं चलेगा. You have to give them a good reason why. So, as parents, the more you communicate with them as individuals, बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझना छोड़ दो. They are a different individual. The हाँ, bond between you should be of love, care, respect, and not ownership. कि मेरा बेटा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा, या मेरी बेटी है तो मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करेगी, is not the right attitude. We have to move towards parenting style in digital era. तो वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है. द मोर यू कम्युनिकेट एंड रेलेवेंट फैक्ट्स. जैसे हमारे समय पे सेक्स एजुकेशन बिल्कुल होता ही नहीं था. मिलेनियल्स के समय उसकी चर्चा होना शुरू हुई एंड सेक्स एजुकेशन पे बात आएगी. लेकिन अभी भी पेरेंट्स कैसे डील करते थे, दे वुड यूज स्लैंग वर्ड्स, नुन्नू एंड नुन्नी एंड पता नहीं क्या क्या ऐसे बात करते थे, which worked at that point, क्योंकि they were not comfortable, and kids were still not that sharp and smart, and access to information नहीं था.
तो हमारा एक्सेस जहाँ था वो हमारे पेरेंट्स या हमारी टीचर्स होती थी, तो वी यूज्ड टू ट्रस्ट देम। लेकिन टुडे द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एट योर फिंगर टिप्स। तो अगर आप आज भी वो बेबी टॉक करोगे एंड यूजिंग हुँ, दीज स्लैंग्स, योर किड्स आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू रिलेट एंड एक्सेप्ट, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, चीजें वैलिडेट हो रही हैं। अगर आप उन्हें नुन्नू वगैरह बोलते हो और वो जाके गूगल करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर, राइट? So you यस। also have to upgrade. You also हुँ, have to use the right words and right terms. हुँ, And the key to having an amazing relationship with your Gen Zs and Gen Alpha is communication. If you create as a parent, अगर आप एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट रखते हो, अपने घर में क्रिएट करते हो, तो आप देखो आपका रिलेशनशिप कैसे ब्लॉसम होता है। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, एंड इन माय क्लिनिकल वर्क जितने पेरेंट्स के साथ मैंने ये काम किया है, दे ऑल हैव कम बैक एंड सेड यस, दिस इज द मैजिक पोशन दैट इट डज वर्क। वी शुड नॉट शाई अवे कि अगर हमने हमें बच्चे ने कुछ पूछा एंड हमारे पास अगर उसका आंसर नहीं है, तो हम कुछ भी बोल दें वो नहीं चलेगा। You have to also say that, look, I also don't know, why don't we look at it together, और गिव मी सम टाइम, मैं पता करके आपको बताती हूँ। बट कुछ भी गलत आंसर मत दो, या जस्ट मन को बहलाने वाले आंसर्स मत दो, बिकॉज दीज किड्स आर वे स्मार्टर टू डील विथ द राइट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड वैलिडेट भी कर सकते हैं। सो जितना अगर सी न्यू एज मिस्टेक्स होने वाली हैं बच्चों से, डिजिटल एरा की मिस्टेक्स हैं, तो आप रिएक्शन एंड जजमेंट करने की एवज अगर उसे समझ के लो कि ठीक है, अच्छा बताओ क्या हुआ है। एंड क्योंकि जरूरी नहीं है आप पेरेंट हो यार, आप कोई अंतर्यामी नहीं हो कि आपको सब कुछ पहले से ही पता हो, तो यू शुड ऑल्सो बी ओके कि ओके, गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक अबाउट इट। बट तुरंत तुरंत आंसर प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। So stop being an answering parent. Be a parent who stimulates in them to look out for answers together. That's where you bond with them, and keep that non-judgmental environment and open communication with them. That will help you nurture your relationship beautifully. वाओ! आई लव दिस आंसर। और क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, Yes. बट मुश्किल है, धीरे-धीरे आई थिंक वी आर रीचिंग देयर। बट एक चीज़ आ जाती है डिवाइसेज़ देने की। अभी मेरी बच्ची 7 की है, बट वो 5 साल की उम्र से कह रही है कि मुझे मेरा आईफ़ोन 18 प्रो कब मिलेगा? 18 दो। और अच्छा मैं जब 13 इयर्स की हो जाऊँगी तब दे दोगे, कब दोगे? तो निराली फ्रॉम यू आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक तो डिवाइस देने पे आपके क्या व्यूज़ हैं, एक ये बात मैं जानना चाहती हूँ, और दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई राइट एज होती है डिवाइस देने की, या फिर हमें बच्चों का मेंटल मेकअप या आई डोंट नो क्या देखना चाहिए कि हाँ, आर दे रेडी, आर दे नॉट? तो हाउ डू वी डू दिस डिवाइस थिंग? True. So I am very often asked this, okay, what is the right time to give them their devices? हुँ, If we are talking of Zen Alpha, they are entitled to devices. क्योंकि आप खुद सोचो कि जब वो प्रेग्नेंट थे आप 24 घंटा डिवाइस चलाते थे। जब वो बॉर्न हुए, व्हेन यू आर फीडिंग द मदर इज आल्सो ऑन डिवाइस, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में मम्मी का तो कोई रोल नहीं है, ऐसे ही उसको बैठे रहना है, तो वो अपना डिवाइस पे लगी हुई है। तो जब इतने सारे डिवाइसेस हमारे आसपास है, आप कैसे उसे रोक सकते हो? इफ वी हैव टू, इफ यू कैन नेगोशिएट, एंड आपका घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि घर में जैसे ही लोग घर पे आते हैं अपने डिवाइसेस एक जगह पे रख देते हैं, एंड दे कैन बी डिवाइस फ्री। ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो आपका बच्चा भी डिवाइस फ्री होने पे बिल्कुल ही अलग महसूस नहीं करेगा। ये घर में हो सकता है। अब अगर हमें ये सब घरों में चाहिए, तो एज अ सोसाइटी वी हैव टू कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स दिस। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत अलग लोग रहते हैं, कुछ नहीं तैयार है ये एफर्ट डालने को, कुछ कर सकते हैं। तो इन सच एनवायरनमेंट्स की, चलो घर पे तो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बाहर कैसे मैनेज करें? तो वहाँ से फिर पीयर इन्फ्लुएंस होता है, एंड पीयर एक्सेप्टेंस में तकलीफ आ जाती है। सो देर आर टाइम्स वेर यू हैव टू डिसाइड टू गिव योर डिवाइस टू योर किड। यूनिवर्सली तो ऐसे कोई राइट एज या रॉन्ग एज नहीं होती है। इट इज अबाउट द रेडीनेस एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन जो आपने बच्चे को दिया है।
क्योंकि गिविंग an internet enabled device to a kid is like giving a car with the keys and पेट्रोल भरा हुआ। अब तुम बच्चे को बोलो जाओ चल, तो क्या आपने उसको ट्रेन किया है, क्या आपने उसको एजुकेट किया है कि क्या डेंजर्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो सेम वे, जब भी आपको बच्चे को अपना डिवाइस देना हो, पहले आप उन्हें एजुकेट करिए, उन्हें ट्रेन करिए, उन्हें सेंसिटाइज करिए, उन्हें बताइए हाउ टू यूज दिस। When you feel that now they have learned it, tabhi. Now when you're introducing a device, always introduce it with a parent control enabled device. There is nothing wrong in doing that for younger children. लेकिन बोल के करो that because you are young, I am going to be monitoring all this so that I am making sure you are safe. ज्यादातर प्रॉब्लम कब आती है जब पेरेंट बोल देते कि ताकि तुम इधर उधर कुछ भी नहीं देख लो। दैट मीन्स यू आर टेलिंग द चाइल्ड आई डोंट ट्रस्ट यू। डोंट एम्फसाइज ऑन द ट्रस्ट, एम्फसाइज ऑन सेफ्टी, कि मुझे आपको सेफ रखना है इसीलिए आई एम डूइंग। सो देर आर ब्यूटिफुल एप्स लाइक गूगल फैमिली लिंक हो गया जो इनबिल्ट है आजकल के नवे डिवाइसेस में, एंड फ्रॉम दैट यू कैन कंप्लीटली कंट्रोल एंड मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ योर चाइल्ड। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, ये तो आप अपने सीनियर पेरेंट्स के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट वेल वर्स्ड विद द डिजिटल वर्ल्ड। ओल्ड पेरेंट्स जो जेनेक्स एंड मेरे भी ऊपर के एज के हैं, तो उन्हें उस समय के लिए यूजिंग दीज पर्टिकुलर एप्स जो पेरेंट कंट्रोल एनेबल करती हैं इज वेरी हेल्पफुल। नाउ व्हेन देयर आर यंगर किड्स, हमें स्क्रीन टाइम उन्हें कहीं ना कहीं देना ही पड़ रहा है, देन आई विल ऑलवेज से कि डू नॉट शेयर योर डिवाइसेस, कीप अ न्यूट्रल डिवाइस एट होम जिसमें सारे पेरेंटल कंट्रोल्स हों। एंड वो डिवाइस फिर आप बच्चे को जैसे जैसे एक आईपैड हो गया या टेलीविजन जो जिसपे लॉक्स सही से हैं, अगर आप आपका ही नेटफ्लिक्स अकाउंट उसको शेयर करोगे, इट्स नॉट इन। सो सेम वे अपने पर्सनल डिवाइसेस नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमारे डिवाइस पे हमारे बहुत सारे दूसरे एप्स होते हैं विच किड्स आर नॉट रेडी एंड दे आर नॉट एज अप्रोप्रिएट। So having a separate device which has parental control, which has very limited apps, जो बच्चों को छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या देखते हैं, वीडियोस ही देखते हैं। तो यूट्यूब फॉर किड्स हो गया या गूगल फॉर किड्स हो गया, ये दो चीजें डाल के आपने दे दी। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो गेम्स होती हैं, तो वो डिवाइस पे वही गेम्स होनी चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट हैं एंड ऑल। सो वन डिवाइस पे यू कैन मेंटेन दैट हाइजीन। इसीलिए आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि यस उसको सेपरेट दो। यू डोंट हैव टू से दिस इज योर डिवाइस, दिस इज द डिवाइस ऑफ द हाउस। वो एंटाइटलमेंट अभी से नहीं होनी चाहिए। Now when our children talk about that, oh, I want this iPhone and this and all, it is somewhere where we have also as parents made them feel entitled शुरू से। आज क्या हो गया है कि सब पेरेंट्स के पास एक एक बच्चा होता है, ज्यादातर। मेरा खुद का भी एक है, सो आई कैन टेल यू फ्रॉम दैट। प्लस हमारे पास टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, हमारी लाइफ्स आर ऑल्सो वेरी एक्टिव एंड बिजी, तो हम कॉम्पेंसेट कर देते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स से। एंड बिकॉज इट इज वन चाइल्ड वी वांट टू मेक श्योर वी गिव देम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड हम कॉम्प्रोमाइज, हमें बचपन से ही उनको हम ब्रांड्स वगैरह में एनकरेज करते हैं। तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हम दे रहे हैं विदाउट एजुकेटिंग द वैल्यू फॉर ऑफ मनी। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे काम करना बहुत जरूरी है कि आप, किसी बच्चे क्ले की तरह होते हैं, आप उसे जैसे मोल्ड करोगे वो वैसे मोल्ड हो जाएगा। तो लुक इन योर ओन हाउसेस, इन योर ओन अपब्रिंगिंग, कि आपने उसे कैसे मोल्ड किया हुआ है। अगर आपने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट शुरू से ही रखी है तो कहीं ना कहीं बच्चा तो डिमांड करेगा ही। तो एज पेरेंट्स वी हैव टू मेक श्योर that ye entitlement should also come with the education of the value of money, the value of time, the value of respect, all these things. And then we can say, and we can find our kids to be more reasonable with their demands.
ओके। Yeah. तो It छोटे is बच्चों में तो ये, work. हाँ, सॉरी, यू वर सेइंग, प्लीज कंटिन्यू। No, I'm saying it is some work. It is not like automatically हो रहा है. या ट्रू। तो पेरेंट्स अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, और ये जो पेरेंटल कंट्रोल है, ये छोटे बच्चों में तो चल जाता है, बट वंस दे आर ओल्डर, मे बी 14-15, तो फिर Yes. वो चाहेंगे कि हमें फुल एक्सेस मिले, क्योंकि ये भी कंट्रोल ना हो, वो भी कंट्रोल ना हो। फिर हमें उन्हें कहीं ना कहीं एजुकेट करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या Correct. गलत है। तो उस जगह पे हम उनसे कैसे बात करें और कैसे उन्हें समझाएं, मतलब क्या समझाना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। Parenting is an art. As a parent, you have to be creative. You have to figure out ways that work with your child. अब in terms of older parents, control नहीं चलता है. There, what we have to invest is in building a good open communication and a non-judgmental environment. You educate them, you sensitize them, you give them factual information and trainings. Things will start working. एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम कलेक्टिवली एफर्ट डालें, जैसे स्कूल के सारे पेरेंट्स अगर एक ही पेज पे हो एंड इसी तरह से इन्हीं वैल्यू सिस्टम्स में ब्रॉट अप करें अपने बच्चों को, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है. लेकिन यस, वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. तो ये एक रेगुलर वर्क रहेगा. सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बच्चों से डिजिटल सेफ्टी की बात करनी है, तो द राइट अप्रोच इज, अगर आप उन्हें बोलोगे कि चलो बेटा आज बैठ के ये बात करनी है, तो वहां तो जैसे ही बोला कि ओ वी नीड टू टॉक, शट ऑफ हो जाते हैं बच्चे, बहाने बनाएंगे एंड अवॉइड करेंगे. दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ योर रेगुलर एक्टिविटीज एंड कॉन्वर्सेशंस. सो एज अ पेरेंट हमें पता होनी चाहिए कि हम हमारे बच्चों से किस अलग अलग तरीके से बॉन्ड कर सकते हैं. तो अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ है, तो आप स्पोर्ट्स के कॉन्वर्सेशन से साथ उनसे बॉन्ड कर सकते हो. अगर आपके बच्चे को एक्स वाई जी पसंद है, तो आप उस तरह से उनसे बॉन्ड करो. सो आई गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल. जैसे माई किड इज ऑल्सो इन टू स्पॉट एंड मुझे उसको पिकअप ड्रॉप करना होता था उसके स्पॉट के लिए. तो जो हमारी ड्राइव होती थी, तो उस टाइम पे आई वुड रेज दीज टॉपिक्स दैट अरे तुमने सुना क्या, अब ये एक बच्चे के साथ ऑनलाइन ऐसे हुआ है, उसने अपना पासवर्ड शेयर कर दिया गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग हिज अकाउंट्स टू bully somebody else and all. So we have to figure out these creative methods when we can identify कि our kids are more into listening mode. कुछ चीज़ें हमें play से बतानी होती है, कुछ चीज़ें हमें examples दे के उन्हें समझाना है. But ये sensitization, awareness, education is an ongoing process. ऐसा नहीं है कि एक बार बिठा के बोल दिया तो खत्म बात, अब हमें उसे देखना ही नहीं. एंड ऑल सेड एंड डन कि हम ये सारी फ्रीडम, सारी लिबर्टी एंड ओपन डायलॉग, कम्युनिकेशन सब कर रहे हैं, बट देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे एज अ पेरेंट यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड इट इज नॉन नेगोशिएबल. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन टाइम, बड़े बच्चे हो छोटे बच्चे हो, आफ्टर पॉइंट सर्टेन स्क्रीन टाइम इज अलाउड. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट योर फुट डाउन. दैट नहीं मीन्स नहीं. And they will start respecting when you as a parent will be firm. आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स गुस्सा तो कर लेते हैं, फिर खुद ही जाके माफी मांग लेते हैं बच्चों से. तो बच्चा तो कंफ्यूज है ना कि उसने गलती की थी कि मेरे माँ बाप का टेंट्रम था ये. करेक्ट. तो ट्रू, अगर मेरी बच्ची कहती, मम्मी आप मान जाती हो बाद में। सॉरी टू इंटरप्ट, बट यू आर राइट, शी ऑल्सो सेज कि मम्मा आप मान जाती हो, पहले आप मना करती हो, फिर थोड़ा गुस्सा होती हो, ये वो होता है, लेकिन फिर आप मान भी जाती हो मेरी बात ज्यादातर, तो यू आर राइट। तो इससे क्या हो गया ना कि बच्चे ने ये एपिसोड से कुछ भी टेक अवे नहीं किया. हाँ। उसे लगा कि यार चलो मम्मी का मूड खराब था, या तो फिर मम्मी का टैंट्रम था कि बस तभी थोड़ी देर नाराज हो गई, अब छोड़ दिया उसे. हम्म। तो ये यहाँ पे हम बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं. जो चीज गलत है एंड उसके लिए अगर आप अपसेट हो, तो आप अपसेट रहो. एंड जब आपको लगे कि यस आप भी काम हो, बच्चा भी काम है, तब आप उसे एड्रेस करो एंड उसे बताओ कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है. सो बहुत बार हम ना इसी तरह डिसरिस्पेक्ट को
अलाउ करते हैं। फिर बोलते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे से तमीज़ से बात नहीं करते हैं, बट समवेयर वी हैव एनकरेज्ड इट। वी हैव बीन गिविंग देम मिक्स्ड सिग्नल्स, कन्फ्यूजिंग देम कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इसी वजह से हमारी वो क्लैरिटी होनी चाहिए। सो गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आई आई बिलोंग टू अ जैन फैमिली, तो हमारे यहाँ प्योर वेज खाना रहता है। अब अगर मेरा बच्चा घर में नॉन वेज खाना शुरू करता है, अगर मुझे वो सही नहीं लग रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एंड माई हाउस, आई हैव टू ले सम ग्राउंड रूल्स, राइट? और फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं, मैंने मैचस्टिक के साथ खेलना ही खेलना है, वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन, राइट? गिव इट अ दिस थिंग। अच्छा चलो, मैचस्टिक के साथ वो खेल रहा था, या किसी, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वो किसी बच्चे को मार रहा है, आपने देखा, आपने उसे तभी वहां से छुड़वाया, गुस्सा किया, एंड उसके बाद में आपने ही खुद जाके बोल दिया कि अरे नहीं नहीं बेटा, सॉरी, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसको नहीं मारना चाहिए था। तो ही और शी विल एज अ किड फील दैट आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। हम्म। सो ब्रिंग दैट क्लैरिटी कि दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम्म। एंड इट इज ओके अगर आपके बच्चे रोते हैं। Crying is, it is any day, see, any kind of unrest, we will have a reaction. Sometimes it is anger, sometimes it is tears. These are all the guards or the shields for hurt. कहीं हमें हर्ट हुआ तो या तो हम गुस्सा करेंगे, या तो हम विड्रॉ कर लेंगे, या खुद ही रो लेंगे। सो बोथ ऑफ दीज आर ओके टू अ सर्टन एक्सटेंट, बैलेंस में। हाँ, दिन भर रोने वाला है तो ऑब्वियसली यू हैव टू इंटरवीन, या दिन भर गुस्सा करने वाला या एक्सट्रीम रेज होने वाला है तो यू हैव टू इंटरवीन। बट अगर थोड़े टाइम तक अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है तो इट इज ओके। But afterwards, when they quiet down, when they calm down, bring up that dialogue and explain to them that this was not appropriate and this is not accepted. तो अभी तक जितनी भी बात करी, मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने शुरू में बोला भी कि ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बात घूम फिर के उसी पे आ रही है। हमें अपने आप को रेडी करना है, अपने बच्चों को रेडी करना है, तो कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो सोशल मीडिया आ जाता है। और आजकल एक डिबेट है जो बहुत चल रही है कि अपने बच्चों का फेस सोशल मीडिया पे शेयर करें या नहीं करें। उसमें भी डिफरेंट लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज वी डोंट हैव आवर किड्स कंसेंट, हमें नहीं करना चाहिए। बट फिर दूसरी चीज़ ये भी एक चीज़ है कि सेफ है कि नहीं सेफ है। अगर कंसेंट की बात को हटा दें तो सेफ्टी की बात आ जाती है कि बच्चों का इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है। मान लीजिए हम कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हैं, उनके स्कूल भी नहीं शेयर कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर शेयरिंग देयर फेसेस। तो कई लोग अग्री करते हैं, कई लोग नहीं अग्री करते हैं। और मैंने भी सिंस अ ईयर और सो अपनी बच्ची का फेस ऑनलाइन शेयर करना बंद कर दिया है। तो ये सही में इतना स्कैरी है जितना हम लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, देखते हैं, या फिर हम ज्यादा डर रहे हैं? बैलेंस क्या है इसका? It is a very very significant question in today's day. तो इसका आंसर मैं दो तीन पार्ट्स में दूंगी। सबसे पहला कि इफ़ यू आर आस्किंग मी कि डिजिटल वर्ल्ड इतना स्कैरी है या हम ज़्यादा डर रहे हैं, तो मैं कहूँगी यस, इट इज़ स्कैरी। हम ज़्यादा नहीं डर रहे हैं, एंड ये ज़्यादा स्कैरी इसलिए है क्योंकि इसमें हमें अ, हमारा दुश्मन कौन है यही नहीं पता चल पाता है। हम्म। शायद वो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर ही हो, या शायद समबडी हार्डकोर क्रिमिनल ही हो। सो क्योंकि हमें वो नहीं पता चल सकता है, वी हैव टू बी डबल ऑन आवर गार्ड्स हम्म। all the time. So yes, to answer that, it is a scary world. But is the solution not sharing? Now this is a very subjective question. आप क्यों शेयर कर रहे हो? सबसे पहले आप अपने आप को वो आंसर दीजिए। सो हम आपके बच्चे की बात करते हैं। लेट्स से लेट मी आस्क यू कि आप क्यों अपने बच्चे का फोटो ऑनलाइन शेयर करना चाहते हो, और व्हाई आर यू शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर चिल्ड्रन ऑनलाइन? व्हाट्स योर इंटेंट? ओके, सो आई स्टार्टेड आउट एज अ मदर ब्लॉगर। उस टाइम ये चल रहा था, 2017 में मेरी बच्ची बॉर्न हुई थी। आई वॉज फॉलोइंग मॉम ब्लॉगर्स। मुझे लगा चलो ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज अ सोशल मीडिया मैनेजर बाय प्रोफेशन।
तो मैंने वो करना शुरू कर दिया और आई डिड इट फॉर 5-6 ईयर्स कि हाँ, उसका फेस शेयर कर रही हूँ, उसकी एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ थोड़ा बहुत, और फिर अपने को ये भी लगता है कि चलो उस पे एंगेजमेंट भी अच्छा आता है, लोग बच्चे को देखते हैं तो मदर्स आर लाइक अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा कर रही थी, तो थोड़ा सा एंगेजमेंट आता है, एक वो लालच भी होता है। फिर धीरे धीरे आई रियलाइज जब मैंने चीज़ें देखना शुरू करी कि हाँ, इसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, और कई सारे लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करने लगे कि बच्चों का फोटो मॉर्फ किया जा सकता है, कई जगह सर्कुलेट किया जा सकता है। तो Correct. मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, और पिछले एक एक डेढ़ साल से मैंने उसका फेस फिर शेयर करना बंद कर दिया। तो फिर अब मुझे मतलब क्योंकि मेरा काम भी डिफरेंट है, मैंने मॉम ब्लॉगिंग पहले ही उससे पहले ही बंद कर दी थी, और अब नाउ आई डू दिस पॉडकास्ट, सोशल मीडिया का जो मेरा वर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे Correct. कोई ज़रूरत भी नहीं है, एंड अगर अब मुझे ये भी लगता है कि अगर मुझे ज़रूरत हुई भी तो मैं नहीं करूँगी। आई Right. डोंट वांट टू डू इट बिकॉज़ आई Correct. फील इट इज़ वेरी रिस्की। तो Yes. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो थैंक यू फॉर आंसरिंग इट वेरी ऑनेस्टली। जैसे मैंने आपको पूछा कि आपका क्या इंटेंट था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, जैसे कोई अपनी चैनल शुरू करनी है, या फॉलोअर्स चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। इन शॉर्ट, योर चाइल्ड बिकेम योर प्रोडक्ट, हाँ। राइट? तो अब आंसर भी इसी में है, आप खुद सोच लो। प्रोडक्ट अगर आपको अपने बच्चे को बनाना है, तो गो अहेड एंड डू इट, इट विल कम एट इट्स ओन कॉस्ट, राइट? सेकेंडली, ज़्यादातर लोग ये जो रेगुलरली अपने बच्चे के बारे में पोस्ट करते हैं विद देयर फोटोज, और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, या तो बच्चों को ट्रॉफी बना देते हैं, जिनके बच्चे अचीवर्स होते हैं वो दिन रात उसकी ट्रॉफी बना के उसको वो कर रहे होते हैं, or else someone who is making their kids as their products. I won't say it is right or wrong. It's a very subjective matter. You only have to understand that what are going to be the pros, what are going to be the cons. Number one, just say, yes, we do not have child's consent, but I understand that every parent has their best interest. So giving that benefit of doubt, okay, yes, your interest for you, I mean, you have the best interest of your child, so we're assuming that content. But remember that internet never forgets anything. There are certain things जो जब बच्चा बड़ा होता है, it can become embarrassing for them. It can become too much of information for them. Maybe he or she turns out to be a more private person. उन्हें अपनी लाइफ डिस्क्रीट करनी है, लेकिन हमने ऑलरेडी उनकी लाइफ इस पे पॉपुलर कर रखी है. So we have to be aware of these things, कि how it can impact your child tomorrow. Yes, there are a lot of cyberbullying related activities, cyber criminals lurking and hiding. There are, pedophiles hiding out over there, and they have easy access to all these photographs. So, if you have to ask me as my professional opinion, I would say stay away. There are many other ways to start your profession or use that. You don't necessarily have to act or make your child your product, and if you're making, you have to be prepared for what could be the consequences and have extra safety measures. हम्म। Ask me personally, again, I feel that हर किसी को अपनी प्राइवेसी का खुद डिसाइड करना अपना राइट होता है, कि मुझे कितना शेयर करना है, कितना नहीं करना है. तो जब बच्चे छोटे होते हैं, हम उनके लिए ये डिसीजन जब लेते हैं, तो डबल जिम्मेदारी है हमारे. तो उस जिम्मेदारी को प्यार से निभाइए एंड सोच समझ के निभाइए कि कितना शेयर करना है, क्योंकि इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं है. तो आप शायद अकाउंट डिलीट कर दो, आप शायद फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो उन्हें डिग करके निकाल सकते हैं. तो ये रिस्क समझ के आप उतना ही शेयर करिए. येस, टू शेयर यूनिफ़ॉर्म के पिक्चर्स, लोकेशंस, डे टू डे एक्टिविटीज़, नॉट सेफ एट ऑल. इससे प्रेशर भी बनता है. Forget about the dangers in the cyber world in terms of crime. There's also an emotional baggage and an emotional pressure that our kids will have to carry. एक बच्चा जिसकी सी, सोशल मीडिया इज अ हाईलाइट रील ऑफ योर लाइफ्स. वेरी रेयरली विल वी पुट आउट थिंग्स विच आर नॉट गुड. हम हमेशा फैंसी चीजें, द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ शेयर करते हैं. इफ यू ऑलवेज लुक एट लाइफ एज ओनली अचीवमेंट्स, it's a very lopsided view. You cannot measure an achievement without its effort.
विदाउट द फेलियर्स दैट वी फेस्ड ड्यूरिंग दैट एफर्ट्स, उसके बाद ही वो अचीवमेंट की वैल्यू समझ में आती है। तो यहीं से भी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ रहा है बच्चों में, क्योंकि हम उनकी ट्रॉफीज डाल रहे हैं। अब जब बच्चा बड़ा होता है एंड जब वो ट्रॉफी नहीं ला पाता है, तो आप सोचो द बर्डन कि यार मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं पोस्ट करने को, आई एम नॉट गुड इनफ, is the burden they start living with. When they are cute, when they're young, they are very cute, very chubby, choppy, body image का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि तब एक्सेप्टेंस बहुत होती है। तब बच्चा जब हेल्दी भी होता है तो उसे हम बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं, चबी एंड क्यूट में निकाल लेते हैं। लेकिन यही हेल्दी बच्चा जब बड़ा होके भी हेल्दी होता है, ये बॉडी शेमिंग में कन्वर्ट हो जाता है। Yeah. तो ये भी प्रेशर उसे आगे चल के डील करना होता है, अगर आपने उनकी लाइफ इतनी पब्लिक कर रखी है। So Yeah. unless it is an SOS or you are completely ready that yes, with full awareness, I still want to make that decision, then go for it. It's not like कि हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होने वाला है, बट हमें एक तैयारी तो रखनी है उसकी, कि Hmm. फिजिकली, इमोशनली एंड क्राइम वाइज, सेफ्टी वाइज, हर चीज से वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन वी आर मेकिंग आवर किड्स लाइफ पब्लिक। Mm-hmm. यस। तो प्रिपेयर्ड हैं हम और शेयर कर रहे हैं, बट व्हाट डू वी डू इफ समथिंग अनटूवर्ड हैपेंस? कहीं फोटो लीक हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, कुछ हुआ, तो फिर क्या करना चाहिए या किसे रीच आउट करना चाहिए? Right. So, number one, these are new age nuisances. Panic mat kariye. Don't get hyper and anxious and delete your account या डर के मारे सब कुछ डिलीट कर दिया, नहीं। डिजिटल वर्ल्ड में यही आपका एविडेंस भी होता है। तो सबसे पहला कुछ जब भी जस्ट हुआ है, तो 1930 ये हमारी नेशनल हेल्पलाइन है अगेंस्ट साइबर क्राइम। इमीडिएटली यहाँ फ़ोन करिए, इन्हें बताइए कि क्या हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पे रीच आउट करिए कि यहाँ से मेरी फ़ोटोज़ लीक हो रही हैं या मेरा अकाउंट हैक हो रहा है, उन्हें वो बताइए। फैमिली में, फ्रेंड्स में आपके फॉलोवर्स हैं, उन्हें वो बता के रखिए कि दिस इज़ नॉट यू, एंड देन रीच आउट टू अ प्रोफेशनल। अगर द इमेजेस दैट हैव लीक, सी वंस यू आर मेकिंग द फोटोज पब्लिक बच्चे की, तो इट इज़ लाइक पुटिंग आउट ऑन अ होर्डिंग। हर कोई देखने वाला है, कोई भी फोटो ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ये तो पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा। आप चाहे डिसेबल भी रखो, स्क्रीनशॉटिंग हो जाती है दूसरे फ़ोन से फ़ोटो, तो ये तो हो ही रहा है। सो समवेयर तो लीकिंग इज़ पार्ट ऑफ यू मेकिंग देयर लाइफ्स पब्लिक। इसके अलावा भी अगर कोई मॉर्फ हो रहा है, कुछ फेक वीडियोस बन रही हैं, डीप फेक्स में यूज़ हो रहा है, न्यूड्स बन रहे हैं, देन यू कैन, लाइक आई सेड, 1930 पे कंप्लेन करिए। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे जा सकते हो। When it is crime against women and crime against young children, you can reach out to any police station. एंड प्रोफेशनल्स जैसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्हें रीच आउट करिए। दे कैन हेल्प यू identify your bully, and they can work with the police also. Like, we have to understand the load on the police and a private investigator. And the most important is, do not forget to get the child counseled. See, the wounds in the digital world are not physical. तो चेहरे पे नजर नहीं आते हैं. They're all internal. They impact your emotional well-being. So, hence, speaking to a counselor who will work in the areas of cybercrime, you can. I run an organization which is a non-profit organization, and we have a very wonderful our flagship program, which is CyberBar, which is stands for Cyberbullying Awareness, Action and Prevention. तो हमारा एक मोबाइल ऐप है जहाँ पे बुलिंग विक्टिम्स, यानी विक्टिम्स जिनके साथ पैसे का नुकसान नहीं, बट ये दूसरे तरह के नुकसान हुए कि उनकी फ़ोटो किसी ने मॉर्फ कर दी है, सर्कुलेट कर दी है, उन्हें कोई थ्रेटन कर रहा है, बुली कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, हम इनकी मदद करते हैं। So we guide them, we counsel them, we handhold them through their police case journey, etc. We connect them to the right individuals
So you can reach out to our organization also. You can download our app. It is available on both the Play stores, Apple as well as Android, in by the name of Cyberbar. Besides this, ये तो इंसिडेंट होने पे है, हम ये भी Mhm. एडुकेट करते हैं कि एविडेंसेस कैसे सेव करने हैं एक्सेट्रा. Besides this, on a daily basis, we send you your source of information. Like you get the information from right source in terms of prevent. Today, prevention is your biggest way of securing yourself. तो जितना आप अवेयर रहोगे उतना यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड. सो दैट इज वेयर वी ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट पे भी बहुत इंफॉर्मेशन है, बट यू कैन ऑलवेज रीच आउट एंड यूज आवर ऐप ऑल्सो फॉर दैट. Mhm. So very simply put, never ever delete anything. These are your evidences. Don't panic. इमिडिएटली 1930 पे रिपोर्ट करिए, वो भी आपको फर्दर स्टेप्स बताएंगे. अगर कॉल नहीं हो सकता है तो एविडेंस के साथ आप cybercrime.gov.in पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो. वहाँ से यूल गेट एन एक्नॉलेजमेंट, ये लेके आप आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में जा सकते हो कि ये मेरा केस है. एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द कंटेंट डाउन, पुलिस भी करेगी. एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू प्रोफेशनल्स, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम्स, जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है. एंड मेंटली एंड इमोशनली भी उसे एड्रेस करना ज़रूरी है. Mhm. Okay, okay, wow. So thank you for explaining all of this very clearly because डर तो लगता ही है बट अगर कुछ हो जाता है तो वी हैव टू डू यस, समथिंग अबाउट इट. बैठ नहीं सकते पैनिक होके कि नहीं अब तो सब खत्म हो ट्रू. गया. एंड आई ऑल्सो ऐड ओवर हियर पेरेंटल रूल. सो हुँ, सबसे पहला, अगर बच्चा आके बोलता है कि मॉम मेरी ये फोटो सर्कुलेट हो रही है, हुँ, डू नॉट जंप टू अ कंक्लूजन कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तुमने ही कुछ किया है, तुमने फोटो शेयर ही क्यों की है. लेट अस अंडरस्टैंड दीज आर द न्यू एज न्यूसेंसेस. टुडे शेयरिंग देयर फोटोज इज बिकम वेरी कॉमन पार्ट ऑफ आवर चिल्ड्रंस लाइव्स. तो वक्त उसमें मत जाया करिए. अब गलती तो हो चुकी है, उसी गलती के लिए उसको जिम्मेदार ठहराने के बदले यू आर क्रिएटिंग डबल इमोशनल वुंड. एज पेरेंट्स आप सबसे पहले उसके लाइन ऑफ सपोर्ट हो, तो प्रोवाइड देम दैट, सुन के लीजिए क्या हुआ है. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, डोंट गिव रिएक्शंस, गिव अ लिसनिंग ईयर. अगर आपको पता है, आप अवेयर हो कि यस चलो हम इमीडिएटली 1930 पे कॉल कर लेते हैं, ये वो डांटने वाली चीज का स्टेज आएगा जब आप डांट भी लगाना और समझाना भी. अभी तुरंत द फर्स्ट स्टेज इज नॉट दैट, क्योंकि द मोमेंट यू डू दैट चाइल्ड विल शट ऑफ. उसे ऐसे लगेगा कि जब माँ बाप ही नहीं समझ रहे हैं तो दुनिया क्या समझने वाली है. राइट, ऑलरेडी ही और शी इज बेयरिंग द गिल्ट एंड द फियर कि मुझसे गलती हो गई है. सो रिएक्शन ना दीजिए, जजमेंट मत बनाइए, सुनिए. अगर आपको नहीं पता है तो बोलिए कि साथ में बैठ के देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. बच्चे बहुत रिसोर्स में अच्छे होते हैं, वो इमिडिएटली सर्च करके बता देंगे मम्मा ये दो तीन संस्थाएं हैं, हम इनको बात करें क्या. तो उनके लिए बी देयर एज दैट सपोर्ट. फिर एट द राइट टाइम, जब आपने मामला ठीक से कर लिया है सेटल, यू गिवन देम अश्योरेंस ताकि मेंटली यू आर नॉट डैमेजिंग योर चाइल्ड मोर, फिर यू कैन सिट डाउन एंड टॉक टू देम कि देखो बेटा, दिस इज व्हाई आई कीप इंश्योरिंग एंड एम्फसाइजिंग कि योर सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट. अब इससे आप लेसन सीखो कि आगे से ये दोबारा नहीं करना है. इससे क्या होगा, आपका भी बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा. The child will also open up to you and they'll start trusting you more. And you will not lose your children and mental damage nahi ho, mhm. right? Yeah, yeah. So, talking to you has also made me a little sentimental because जो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है वो मैं आपसे एक तो ओपनली डिस्कस कर पाई एंड मुझे लगता है जो भी सुनेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ क्या प्रोज हैं कौन से हैं क्या डर है क्या नहीं है. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ योर नॉलेज योर इनसाइट्स विद अस. Thank you. एंड यू ऑलरेडी टोल्ड अस कि आपका एक एनजीओ नॉन प्रॉफिट है साइबर बाप. उसके सिवा इफ यू डू एनीथिंग एल्स प्लीज Yes. डू टेल अस. So there are basically three things that, or rather three programs that we conduct in our NGO. सबसे पहला है हमारा awareness trainings and seminars. Like I said कि prevention is our biggest tool to our safety right now. Not that other people are not working for us, लेकिन हमें भी तो अपने लिए कुछ करना है.
So, in terms of prevention, we conduct these cyber safety awareness and workshops in schools, colleges, organizations for parent groups, etc. So, in terms of age appropriate right information, बच्चों को aware करते हैं, sensitize करते हैं. We emphasize on digital etiquettes, how to manage digital nuances, how to stand up for their peers, etc., etc. For parents, we do workshops on digital parenting because it's very important that we all upgrade ourselves. See, we are 50% of what our parenting was. It worked in that era, it will not work today. So we need to upgrade. So that is where we do it for parents. We also educate teachers and counselors that how to deal with the cyber nuisances and cyberbullying. Because honestly, today 1 out of 5 children have witnessed bullying, either themselves or with their peers. And bullying is very emotionally devastating. It attacks your self confidence big time. So, this is one area where we do awareness trainings. Then, like I said, that we have an incident reporting mechanism. So, आपके साथ अगर कोई incident हुआ है तो you can report to us. We will help, guide, counsel, mentor, everything. The third is where we connect them to the right resources. जैसे अगर अगर केस बहुत सेंसिटिव है एंड इसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है तो वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जिनसे हम जो they share that same philanthropic values with us, so they will also work at lesser professional fee or something, and they are all vetted by us. Okay, these are good professionals, we can help. So वहाँ पर भी हम help करते हैं. Besides all of this, we also run campus clubs in the schools and in the colleges, because I believe that digital safety or cyber safety is, it cannot be a one time job. Because the cyber world is such an integral part of our lives, we need to have a constant dialogue. तो हम schools and colleges में ही इनके clubs शुरू करते हैं, where selected students जिन्हें interest है, जिन्हें इस field में कुछ करना है, they become part of it. Your school counselor or any one teacher is the head of this, जहाँ पे हम ये dialogue continuously on रखते हैं. तो हम उन्हें भी train करते हैं how to handle the responses, how to handle any such instances, या रेगुलरली अवेयरनेस में कैसे काम करना चाहिए. So we have in Mumbai, in a couple of colleges where we have these education cell, cyber cell. We call it as C3s, which is like Cyber Wap Campus Club. तो यहाँ Mhm. पे हम ये भी करते हैं. So these are some areas where we work on. You can always reach out to us. Like I said, we are an NGO, so we are always looking for like-minded volunteers, interns. हम बहुत सारे psychology students को interns की तरह लेते हैं, because they also learn, gain how to be safe themselves. Plus, they also find the cause to be so wonderful to align with it, and instead of just being a user in cyberspace, we turn them into cyber warriors. अगर हम सब साथ में warriors बनने लगे तो automatically cybercrime and the criminals will have to go on a back foot. So that's Yeah. what I Yeah. do. Yeah. Wow. And yes, so this is Mary Sansa. Professionally, I am a practicing counseling psychologist. I have my clinical practice in Bandra. I largely work on relationships, on behavior in digital era, and internet addiction. So these are three areas where I work on. I conduct trainings for corporates. I also conduct training on POSH Act, which is Prevention of Sexual Harassment at Workplaces, and largely working for creating a very safe digital environment for our children. Okay. And Nirali, if people want to reach out to you or your organization, what's the best way to connect? A good way to connect to us is via our app. If they have to reach out to my organization, then it is via our mobile app. You can download it from the Play Stores and App Stores, or you can visit our blog online, the website, which is www.cyberbap.org. And to reach me personally, my website is the best way to reach out. It has all the services listed, it has the contact detail. You can any day reach out. Is it Also, niralibhatia.com?
Yes, it is niralibhatia.com. Even if you Google Nirali Bhatia, you will get the reference over there as well. ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच निराली। मुझे Stress. इसमें से चीज़ें हम लोगों को नहीं थोड़ी-थोड़ी पता होती हैं कि ये ऐसा ही है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए। बट व्हेन यू टॉक टू एन एक्सपर्ट, समवन लाइक यू हू हैज़ सो मच एक्सपीरियंस, सो मच नॉलेज, तो यू लुक एट थिंग्स विद अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। Yeah. So thank you for sharing everything you have shared with us. Thank you for being on Little Fixes and giving us your time. You're most welcome, and I'm really glad that you as a parent, not just a professional, have also recognized this need to have this dialogue, to seek out answers and seek out relevance information to navigate through this entire digital transformation. So, big thanks to you also. Keep doing the good work. Yeah. Thank you. Thank you so much.